Greetings, everybody. I am Syed Musab Rahim Hashmi, advocate. With us, we have a few law students, few junior lawyers, and fresh advocates. So, आज का जो है एक्सपीरियंस कैसा था, एक सिस्टर शेयर करेंगे, वहां से हम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हाँ, कैसे हम उसके बाद फिर बाकी के लोग अगर कुछ डाउट है या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अ, तो सिस्टर, आपका कैसा था आज का दिन? क्या क्या करे आप, क्या क्या ऑब्जर्व करें? जी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, greeting to everybody. Uh, First time I visited the integrated courts, family court, that is at Kalapathar. So it is a newly constructed building. It's very good structure, and there are three floors. This I visited the court, second additional. Uh, in that, I have visited for a case. Um, Mainly हम्म। Okay, sister is having some technical issue. I think her sound is not coming. there are cases about related to Uh-huh. hello. Yeah, please continue. Now your sound is coming. Okay. So child custody cases are there and dowry cases, maintenance cases. So these are the cases in that court. So I visited the second additional court. In that, mainly there are matters of custody cases. Uh, Parents are coming with their children for their cases. So one of the case I have observed about the child that justice said to you both uh, have a conversation, both of them, and then we will say the judgment, whatever it may be. So and one more case I have understood. I have observed that um, there is a case uh, in which women have filed a case against husband about the maintenance and for dowry, and Uh-huh. husband filed about that he want the child custody. Oh. So this is the matter which I observe. So there are laws mainly for more for women, but there are some men also who are getting some victims because of the laws. This thing I have observed. Mm-hmm. I don't know up to which extent it is right or wrong, but I have seen this in the court. Okay. And there is a domestic violence case also, and maintenance cases also. These hearings are going there in that court. Hmm. These I observe. Very good, very good. How was the hygiene, etc.? I have heard that it's a new building. Yes. It's very good. It's very good. Nice parking area. The Disbari Association is at the ground. It is separated. Uh, that if, only who known about that they only go there because a client can't go there, and because they don't have permission also to enter into the bar association, and it is for ladies, so it's separately in a peaceful area. You can sit there, have whatever your activities in your time you can do in bar association, so it's good. And first floor is and everything is neat and clean. I've visited first time, but it's very good.
and everything they have been good maintained about the sanitation and everything, water, drinking water. And there one more thing I observed. They have make two separate sittings for gents waiting lounge and ladies waiting lounge. That is also good. Uh, Actually, I have there are three floors, but actually I've observed only first floor and ground floor. Okay, okay, very good. Thank you. This was the what I experienced. Mm-hmm. Anyone having any doubts? Irfan bhai, Junaid bhai, any other people in the team, have you ever visited family courts? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गए थे फैमिली कोर्ट कभी कोई तो भी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जुनैद भाई, नाउ इट इज द फ्री रन। आप जो चाहे पूछिए वकालत के बारे में, या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। द मेन फीडबैक ऑफ सिस्टर अबाउट द कोर्ट इज ओवर। आप जो चाहे वकालत के बारे में बोल सकते हैं, जो चाहे वकालत के बारे में पूछ सकते जी जी मैं कोर्स जो है सो सिंस 7 इयर्स से विजिट कर रहा हूँ मैं। हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मेरा फैमिली कोर्स में टाइम गुजरा। हम्म। तो वहाँ पे मैं ये ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते, बहस होती, एक एक घंटे तक हियरिंग चलती। कभी अपोजिट पार्टी को हस्बैंड वाइफ, सास भी रहते, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। मगर मैं ये चीज ऑब्जर्व करा हाँ। कि हियरिंग के दौरान हर चीज ऑन रिकॉर्ड पे नहीं आती वहां पर। ओके। ऑन रिकॉर्ड में खाली जो आप अपने मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करके आप जो अपने रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करते हैं वही चीज कंसिडर होती फाइनल जजमेंट में, हाँ। डिक्री में। ऑल अदर थिंग्स गो इन टू द डस्टबिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग वहां पे ये सब चीजें होते। ओके। फाइनल जब जज जो है तो आपको ऑर्डर देने का रहता, बेंच हम्म। क्लर्क रहते, फाइल निकालो बोलते हैं, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट क्या फाइल करे, मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए हुए नहीं हुए हुए, वो देख के वो बेसिस पे हम्म। अपोजिट पार्टी क्या काउंटर डाले उसके ऊपर जजमेंट आता। या जो भी डॉकेट प्रोसीडिंग्स में जज मैडम या जज सर जो भी नोट करे हम्म। उसके बेसिस पे ही होता हर चीज। बाहर के चीजें तो पूरे मेरे को तो बस फॉर द सेक ऑफ लर्निंग बस देखे जैसा है वो। हम्म। इन एक्चुअल डॉक्यूमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं होता हो। ओके ओके। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इतने साल का। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन जुनेद भाई। सही बात है आपकी, क्योंकि एक तो द वर्कलोड एंड नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा रहते हैं कि ओरली कौन से केस में क्या बात हुई, जजेस को, बेंच क्लर्क्स को याद रहने के चांसेस थोड़ा कम है। बट जो जियो जियो। ऑन द रिकॉर्ड है, पेपर पे जो चीज चढ़ गई उसके बेसिस पे वो लोग बेशक आप बोले जैसे फैसला। वो पेपर पे भी मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए हुए रहे ना, मार्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो वो भी वेस्ट है, डस्टबिन में चले जाते हो। अच्छा, अनमार्क डॉक्यूमेंट है तो काम नहीं आता बोल रहा है। जी जी जी, नॉट प्रेस में डाल दे के छोड़ देते हो लोग आपको। हाँ हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। और जनरल वकालत के बारे में कुछ कोई बोलना चाह रहे? आमिर खान, जनरल वकालत, सबको जनरल वकालत का मेरा ये सर ऑब्जर्वेशन है। कैन सबको हाय हेलो तो करने दो ना जुनेद भाई। मोहम्मद आमिर खान भाई, आपकी माइक टेस्ट करिए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मैथ का इशू फेस कर रहा था सर, उस वजह से वो हेडफोन्स निकाल के फिर एक बार चेक किया। हाँ हाँ, हेडफोन्स निकाल के चेक किया के बाद नहीं सुने? या नाउ नाउ कैन यू हियर मी सर? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। Sir, last Friday I have visited family court with you. वेरी गुड वेरी So, गुड। so last time I have noticed one thing, like in that one thing is mentioned like
हाँ, for one husband warrant is issue. So the question is like why warrant is issue in family cases, sir? मतलब आना चाहिए ना, जिम्मेदारी है आपकी, आप जो है तारीखों पे पेशियों पे आना चाहिए। तो अगर Oh, कंटिन्यूअसली आप कई तारीखों पे नहीं आएंगे, आप फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस करे हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं घर में, और आपके ऊपर mhm, केस चल रहा, और आप तारीख पे नहीं आ रहे बोले, तो यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग द कोर्ट। आपको कोर्ट mhm. अगर समन दे के बुलाया और आप नहीं जा रहे, मतलब आप तौहीन कर रहे हैं कोर्ट की तौहीन कर रहे तो। जी जी। Mhm. Sir, the क्योंकि question here is like, हाँ, for example, one person is there, like, so every month, every 1 month, he need to visit to that court. The question is like, for example, if he have missed for 3 months, so that बराबर। time warrant will be like some duration is there like for warrant like नहीं, to be ऐसा issued. कोई फिक्स्ड रूल बुक तो नहीं है, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज। जो Mhm. मैटर के जो बारीकियां हैं, क्या है क्या नहीं, उसमें डिटेल देख के उस हिसाब से, इफ द जज फील्स के अब बहुत ही लाइट ले ले रही पार्टी कोर्ट को, अब पार्टी को जो है समन दिए तो नहीं आ रहे, पार्टी को नोटिस भेजे तो नहीं जा रहे, तो उस सिनारियो में फिर उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाल सकते, अगर उनको महसूस। But बोलिए बोलिए। mhm. Sir, here if warrant is issue, for हाँ। example, if I am defending that clients, if warrant is issue, हम्म। so in that case, can I take a bail for him? हाँ, वारंट इशू होने के बाद बेल ले सकते हैं ना, आप ट्रायल कोर्ट से बेल ले सकते, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट Mhm. जा सकते, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, बट यूजुअली फैमिली मैटर है तो यू मे गेट अ बेल इन ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ। तो एक आई वांट टू एडिशनल ऐड वन मोर थिंग। Hello. वारंट निकल गया तो आप वारंट Hello. को रिकॉल करा ले सकते हैं। हाँ, ये भी है। Recall means sir? जुनेद भाई प्लीज कंटिन्यू। Yeah, रिकॉल Junaid बोले bhai. तो क्लाइंट की तरफ से एडवोकेट जाके अक्रॉस दी बेंच रीजनेबल रीजन अपना दे के वारंट को कैंसिल करा देते, रिकॉल बोलते हो। The no recall is one option. Another option is like if you are not providing any kind of reasonable reason, like if in that case also if he has issued warrant, then only bail is solution. For example, sir, warrant is issue like how much duration advocate have so that he can get a bail like uh, देर इज नो फिक्स ड्यूरेशन, हॉलीडेज वेकेशन का पीरियड नहीं चलता रहना। अब जैसा करीब में mhm, दस्तक आ रहा, ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 6 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर तक क्लोज्ड है। mhm, तो अब ये okay. 6 में वो नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं। अब पार्टी अरेस्ट Mhm, होने तक कभी भी आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं, पार्टी अरेस्ट होने से पहले। पार्टी अरेस्ट mhm, होने के बाद आप प्रॉपर बेल ले सकते हैं। फिर बेल के भी क्या है तरीके, अगर छोटा सेक्शन है तो पुलिस स्टेशन में बेल होता, और mhm, बड़े सेक्शन है तो आपको कोर्ट से बेल लाना पड़ता। तो बेल लाने के बाद जो जो नुकसान क्लाइंट को हो रहा, एक तो एडवोकेट साहब को बेल लाने के लिए फीस देना पड़ रहा, उसके बाद mhm, जज correct. साहब या जज साहिबा अगर बेल के लिए मान गए तो उन्होंने 5,000, 2,000, 10,000, 20,000, कितना भी अमाउंट का बेल बॉन्ड फिक्स कर सकते, चाहे एक दो, Mhm, की मर्जी। तो एक तो एडवोकेट की फीस जारी, उसके बाद बेल बॉन्ड की फीस जारी, फिर अगर अरेस्ट में है तो फिर वो बेल के बॉन्ड्स जो फिक्स डिपॉजिट्स कराने के बाद वो लेके जाके पेपर फिर जेल में दो, फिर 4 बजे 5 बजे के अंदर दो, नहीं तो फिर बॉक्स में डालो, फिर नेक्स्ट वर्किंग डे खुलता हो, तो हैसल हो जाता समझो। इट इज नॉट इजी एंड इट इज एक्सपेंसिव फर्दर। mhm, तो कभी भी कोर्ट को, पुलिस को, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंटों को, वकीलों को, नोटिसों को, समन्स को, वारंट्स को, ये चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए कि इनमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव करके अकॉर्डिंग टू दैट mhm, आप रिपोर्ट करना चाहिए। कोर्ट आपको बस बुला रहा, आपको अपना वर्जन ऑफ सच बात करने को, पेश करने को मौका दे रहा। अगर किसी mhm, कोर्ट का समन आया, उसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट को आपको बुला के आपको रस्सी से बन के झाड़ को शूट कर देने वाले हैं। आपने कोर्ट को बुला के आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये दिन है या रात है, ये वाइट है या ब्लैक है, ये सच है या झूठ है, बोल के आपको बात करने के लिए मौका दे रहा।
जुनेद भाई वांट्स सर टू। मैं हियर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। ये ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी अभी आप थोड़े से चीजें बोले, स्टेजेस गिनाए आप। हर स्टेज पे क्या है, एडवोकेट को फीस देना पड़ता, चाहे कौन सा भी स्टेज रहने दो, वो क्लाइंट को देना पड़ता बोल के बोले। हम्म। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ, वो क्लाइंट के ऊपर बर्डन आ जा रहा, जैसा आप जैसा बोले ना। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम लेकिन मेरे को रॉन्ग ऐसी की बात फीलिंग आई। ऐसी ना, हर स्टेज पे भाई, आप एक घर में रह रहे, प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे, मे बी लाइट का आई एम बिल रॉन्ग के बाद भरेंगे, प्रॉपर्टी वाटर टैक्स का ही बिल ना। भरेंगे, मेंटेनेंस का करेंगे। तो अब नहीं भाई, मैं घर में हूँ, मैं ये सब नहीं करता बोलते तो नहीं कर सकते। जुनेद भाई, अब मैं जुनेद घर भाई में प्लीज हूँ, मैं कुछ स्टॉप भी नहीं है, स्टॉप, जुनेद भाई। ये है तो आप हर स्टेज जुनेद भाई पे। स्टॉप। आपका सेंटेंस इतना फास्ट है हेलो। कि जूम जूम नहीं बर्दाश्त कर सक रहा उसको। प्लीज रिपीट द एंटायर प्लीज प्लीज रिपीट द अच्छा, एंटायर सेंटेंस विथ सम स्लो एंड गैप्स के साथ। आप जो इतना जल्दी शॉर्ट बोलते फॉर्म में बोलूँ क्या? शॉर्ट फॉर्म में। वॉइस ब्रेक हो रही भाई। आप सेम चीज प्लीज रिपीट, अच्छा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये बोल रहा था, अभी आप एक्सप्लेन करें कि हर स्टेज पे क्लाइंट जो है सो एडवोकेट को पैसे देना पड़ता ये स्पीड से बोल बोलिए के आप आप, बोले। परफेक्ट परफेक्ट हूँ, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ, वो क्लाइंट के ऊपर कुछ ऐसा बर्डन हो रहे जैसा आपके अंदाजे बयान से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो तो जरूरी है एडवोकेट को फीस देना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक घर ले लिए भाई, मैं घर ले लिया, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं करता हूँ बोले तो नहीं चलता। प्रॉपर्टी टैक्स देना है आपको, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, घर का मेंटेनेंस करना है, चूल्हे के लिए, गैस के लिए पैसे देना है। तो वैसे ही एक बार लिटिगेशन में जब क्लाइंट आ जाता, हर स्टेज पे उसको पैसे देना एडवोकेट को, वो उसका हक है एडवोकेट का, वो बर्डन नहीं है क्लाइंट पे। वो बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडवोकेट इट्स एन, सही है सही है। सर हियर वन मोर क्वेश्चन आई हैव लाइक नहीं, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। क्लाइंट को, जब आप क्लाइंट सर्विस ले रहे एडवोकेट की, तो ही नीड टू पे हिम ऑल्सो। बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड कल का। well, सही है, कल का कन्वर्सेशन यही था। बराबर बराबर। मैं एक सर का सवाल कर सकता एग्जांपल अब हूँ? भी आप ले बोले सकते जैसा, हैं। कभी ग्रीन रेड में मैनेज कर लेंगे। इरफान भाई, आमिर खान भाई, सिस्टर कौसर तस्नीम, इन तीनों को भी अपन 30 सेकेंड्स मौका देंगे ना। ओनली मुसाब एंड yes जुनैद। yes yeah बिल्कुल sure बिल्कुल। okay. हाँ, इरफान भाई आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, ये बोल रहा था मुसब साहब, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी कुछ कोड बन है बोल के सुना मैं, 14 तारीख तक या क्या 12 13 तारीख तक करेक्ट। किसी आदमी के नाम पे अरेस्ट वारंट निकला है। बराबर। तो अब वो अरेस्ट अपना नहीं चाहता, तो ये 13 14 दिन तक वो मतलब क्या किस तरह से वो फेस करे? वो प्रैक्टिकली और लीगली तरीके से उनको अरेस्ट से रोकने का कोई तरीका नहीं है अगर कोर्ट बंद है तो। अब जी उन्हों अगर किसी खेती बाड़ी के काम में है, उनके पास फोन नहीं है, उन्हों किसी और गांव में रह के अपने खेत को जो है संभाल रही, तो उनको आके लेके जाने प्रैक्टिकल नहीं रहता। जी बट जी दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर एनकरेजिंग इन अवर क्लाइंट्स कि भाई आप एक घर में आपका आईडी प्रूफ है तो आप दूसरी जगह कहीं जाके रह जाओ, ऐसा अपन नहीं बोल रहे हैं। बट अगर नहीं इंसिडेंट नहीं, कोई जैसे आदमी दूसरी जगह रह रहा जी तो उन्हें अरेस्ट नहीं होता। अगर मोबाइल फोन है और उन्होंने एक्टिव है तो दे कैन ट्रेस इट आउट नो। तो आप अगर अच्छा अच्छा छुट्टियों के इसीलिए पास टाइम पे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जैसा एक फेमस तेलंगाना में लेडी थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग पहचान गए तो भी नाम जी न को बोलो। ये वीडियो यूज करके कोई जी और एडिट करके फॉरवर्ड कर रहे तो भी नाम न को बोलो। एक फेमस जी पॉलिटिशियन है, उनके रिश्तेदार है लेडी, उनको फ्राइडे की शाम में करे अरेस्ट, फिर जी सेकंड सैटरडे था, तो फिर संडे था, फिर मंडे भी कुछ छुट्टी थी, ऐसा कुछ था वो। हम्म, तो ये इश्यूज है। तो your question is very right and it's in a way worrisome for potential clients and accused कि भाई वीकेंड पे हो गया, दशहरा में हो गया, बकरीद में हो गया अरेस्ट वारंट, तो जब क्या करेंगे, तो जब कुछ भी नहीं कर सकते आप।
अरेस्ट हो जाने का है आपको, तो बाद जो में लेके बाहर आना है। नहीं, लेकिन कोर्ट तो खुला हुआ नहीं है कि चलो बात करके बाहर आने के वास्ते। वो तो कोर्ट जब खुलेगा जब तक अंदर रहिए आप, ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। मतलब वही है रूल्स। हाँ हाँ, कोर्ट जब खुलेगा, Uh, तो अगर आप लेजी एडवोकेट है, थोड़ा स्लो रिलैक्स काम करते हैं, तो एक दिन आपका ड्राफ्टिंग में जाएगा बेल की। हम्म, हेलो। हम्म। हाँ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसे हैं आप? काफी अरसे बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं यहाँ स्क्रीन पे दिख रही नहीं सर? नहीं दिख रहे सिस्टर आप, आपका खाली नाम दिख रहा। पता नहीं सर, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ आप लोग का आवाज सुनने आ रहा। ओ, खैरिए, मैं आप जब से ट्राई इंटर्नशिप कर रही हूँ सर मैं, लेकिन आप इंटर्नशिप ग्रुप में है ना? हाँ सर। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। 1 2 3 4 5। आवाज सुनने आ रही सर, लेकिन फोन पे दिख रहे नहीं मेरे को स्क्रीन पे। अल्लाह। लीव करके फिर से ज्वाइन करूँ क्या सर? और मैं आपको एक वीडियो भेजा, देखिए इंटर्नशिप ग्रुप में, वो प्ले करके देखिए, अगर वो अ, ठीक नहीं है तो फिर आप लीव करके ज्वाइन कर सकते। पहले वो प्ले करके देखिए। क्या बोल रहे हैं कि सर आप, मेरे को आवाज नहीं आ रहा आपका। समझ नहीं आ रहा, ठीक है तो फिर आप एग्जिट करके फिर एंटर हो जाइए। हाँ ओके सर। sir, like from April to May, holidays are there, right? In court. That time, what accused should do? तो जो है इंचार्ज कोर्ट्स रहते, अब अप्रैल टू मई जो बोल रहे हैं आप, हाई कोर्ट Yes. में जो है हॉलीडे का टाइम टेबल अलग है। हाई कोर्ट में जनरली मोटा मोटा पूरा मई का महीना समर हॉलीडेज रहते हैं तेलंगाना में। अब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है, उनके मौसम के हिसाब से आगे पीछे होता। तो मई का एंटायर मंथ इज समर हॉलीडे फॉर द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। अब उसमें एक या दो जजेस बैठते, इंचार्ज जजेस बोलते हैं उनको, इंचार्ज कोर्ट्स बोलते हैं। Mm-hmm. तो वो लोग बाकी के पूरे जजेस का चीज को टेक केयर करते हैं। और क्या बोलते हैं, सो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स जैसा कि बेल्स हो गए, और अगर आपको जमीन पे कब्जा हो जा रहा, डिस्पोजेशन ऑफ लैंड, या एनवायरनमेंट खराब हो जा रहा, ऐसा कुछ पीआईएल है, तो बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट और क्रूशियल मैटर्स रहे तो फाइल होता। अब उसमें क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में फिक्स्ड बेंचेस 32 है, और 35 तक जो है वेरिएबल बेंचेस रहते, प्रेजेंटली आज के दिन 29 बेंचेस है। तो 29 बेंचेस को हटा के अगर मैं दो रख दूंगा, तो जस्ट इमेजिन द वर्कलोड विच विल कम एंड द पीपल हु हैव टू हैंडल इट। Mm-hmm. तो प्रैक्टिकल इश्यूज, ट्रैफिक जैम ऑफ पेपर्स, ट्रैफिक जैम ऑफ इश्यूज होते जरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहा तो होता, फिर बाद टाइम पे आप लंच मोशन पूछ सकते हैं। लंच मोशन पूछ के दोपहर में से पहले कुछ स्लिप दाखिल करके उन्हें कबूल करे तो लंच मोशन ग्रांट हुआ, तो लंच के फौरन बाद आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा कब्जा हो रहा, ऐसा कि इनके लाइफ को रिस्क है, इन्हें अरेस्ट होने का चांसेस है। ऐसे चीज़ें वो कर सकते। फिर आप जब आप ट्रायल कोर्ट को आ जाते, बेल की बात हो रही तो नामपल्ली कोर्ट चले जाएंगे अपन, तो वहां पे भी इंचार्ज कोर्ट्स और इंचार्ज जजेस को फिक्स करते समर हॉलीडेज के लिए। और Mm-hmm. ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, बेल्स है, किसी को लाइफ को रिस्क है, एनवायरनमेंट को डैमेज हो जा रहा, पोल्यूशन हो जा रहा, टॉक्सिन्स रिलीज हो जा रहे फैक्ट्री से एनवायरनमेंट में, उस हालात में देखते। यूजुअल बहुत छोटे चीज़ें रहे तो वो आफ्टर वेकेशन बोल के बोलते हैं। तो ये किस्सा है सब। Okay, sir. सर सर, आप, एक और एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या आप सबसे? हाँ इरफान भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अरे नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर किसी का A4 में नाम आ रहा है तो हाँ, उसको बिल मिलने कितना टाइम लग जाता है, अंदाजा अंदाजा टाइम कितना लग जाता है उसको? बोले तो ये कैसा है, मतलब मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ।
एक आदमी को एक बिल्डिंग बनाना है, तो जी वो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या खर्चा आएगा और कितने टाइम में बिल्डिंग बनेगी। तो जी इसका जवाब अपन बगैर रिमेनिंग डेटा के नहीं दे सकते। उनको टीन शेड बनाना जी है या आरसीसी का बनाना है, एक फ्लोर बनाना है, 5 फ्लोर बनाना है, और 100 गज पे बनाना है, 1000 गज पे बनाना है, मार्बल होना कि टाइल्स होना, जगुआर होना कि राशि सेरा होना, लप्पम कोटिंग होना कि नहीं होना। तो A4 उन्होंने कौन सी चीज में बने। फॉर एग्जाम्पल सबसे नेगेटिव एक्सट्रीम चीजों से शुरू करता हूँ। जैसा कि पॉक्सो हो गया, आप 18 से कम के बच्चों को खराब करे, या आपका हम्म जो है एनडीपीएस हो गया, नारकोटिक्स ड्रग्स हम्म, एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स का कमर्शियल जी क्वांटिटी हो गया, और कुछ हम्म आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड नेशन के खिलाफ के कुछ एक्टिविटी में A4 अगर है, तो ये तीन सिनारियोज में आप A4 रहो, A1 रहो, A10 रहो, बेल लेने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना पड़ने के इम्कानात रहते इन जनरल। तो फिर सब। मुसा साहब ये, जी एक एक रोक रहा हूँ। चीटिंग, अगर किसी को चीटिंग कर रहे हैं, समझो चीटिंग के केस में अगर आता है तो हाँ, चीटिंग के केस में A4। A4, अगर A4 A3 जो भी है। हाँ, A4 चीटिंग का केस है, उसमें बेल मिलने खर्चा कितना आता, बोल रहे कॉस्ट कितना, टाइम कितना होता पूछ रहे, चांसेस कितना। टाइम टाइम टाइम। अच्छा, टाइम। तो देखिए, बेल की ड्राफ्टिंग एक दिन, बेल की फाइलिंग एक दिन। आप फॉर एग्जांपल मंडे बैठ के टाइप करें, ट्यूसडे दाखिल करें, तो आपको वेनेसडे या हम्म थर्सडे आपकी तारीख आती। थर्सडे तारीख हम्म आई तो जज साहब या साहिबा बोल सकते कि भाई, जो अदर साइड है, जो LW12 हो गए या पुलिस स्टेशन के SHO हो गए, PPGP साहब हो गए, उनको भी मौका दिया जाए कि बेल को क्यों देना या क्यों नहीं देना। तो अब थर्सडे हो गया, थर्सडे के बाद फ्राइडे तो नहीं बोलेंगे, एक दिन में तो उन्होंने पूरे फैक्ट्स कलेक्ट करके नहीं आ सकेंगे, 2 वीक्स बाद तारीख देंगे। तो एक हफ्ता आपका बेल की फाइलिंग और पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, 2 वीक्स जो है पीपी साहब को मौका दिया गया काउंटर पेश करने, तो आपके 3 वीक्स हो गए। तो 3 वीक्स के बाद उन्होंने कुछ चीजें पेश करेंगे, आप कुछ चीजें पेश करेंगे, तो उसके बाद फैसला होगा। क्योंकि कोर्ट में क्या रहता, मैं बोल दिया कि ये स्टेपलर है, तो कोर्ट मेरी बात सुन के ये नहीं मान लेता कि ये स्टेपलर है। कोर्ट हम्म, अदर साइड को भी मौका देता कि स्टेपलर नहीं है ये जो है फॉर एग्जांपल अल्फाबेट L है। तो जी 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 will give all the parties the chance to argue, it will give all the parties chance to give their opinions। तो उसमें थोड़ा जी वक्त लगता। तो आप उसे देते हो कहाँ थे अपन, 3 हफ्ते। तो अगर आपका ग्राउंड स्ट्रांग है, अगर आप क्लियरली आर्ग्यू करें, और अगर PPGP SHO और अक्यूज LW1 आपको अपोज नहीं करे, या उनके अपोजिशन में कोई ग्राउंड नहीं थे, आपके अपोजिशन में ग्राउंड्स थे, हम्म, तो आपको 3 हफ्तों में मिल सकता। और तो पुलिस 3 हफ्ते वाले लगेंगे। पूछ सकते हैं कि भाई हम अभी चार्जशीट दाखिल नहीं करें, हम इंक्वायरी मुकम्मल करके हम्म, चार्जशीट दाखिल करने के बाद बेल दीजिए। क्योंकि क्लाइंट साहब फिर घर को जाएंगे, तो फिर हम इंक्वायरी के लिए PS को बुलाएंगे, तो उन्हें बोलेंगे भाई मैं काम में बिजी हूँ, मैं नहीं आना चाह रहा हूँ, तो हमारे इंक्वायरी में खलल होगा। लिहाजा आप 90 डेज जी हमें जी जी मौका दीजिए। फर्स्ट टाइम पे 4 दिन पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद 5 दिन पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद 10 दिन पूछ सकते हैं, ऐसा भी तरीका कर सकते हो। या सीधा 90 डेज पूछ सकते हैं, सीधा चार्जशीट पूछ सकते हैं, वो उन्होंने जो चाहे पूछ सकते हैं, आप भी जो चाहे पूछ सकते हैं। जज साहब या साहेबा जी जी। दोनों की बात सुनते हैं, दोनों की बात सुन के फैसला उन्होंने करते हैं। हम्म, तो ये अपन जो अभी जो बता रहे हैं बेल, एंटीसेप्टिक बेल होती है या तो कोई वो दूसरी नॉर्मल बेल होती है ये? एंटीसिपेटरी बेल मतलब, एंटीसिपेशन मतलब पहले से, डर के, एहतियातन, हाँ सेफ साइड। तो आदमी अरेस्ट होने से हम्म पहले आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके क्लाइंट अरेस्ट होंगे,
और क्लाइंट और आप मिलके अच्छा अरेस्ट होने से पहले बेल लेना चाह रहे हैं तो उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। अगर अच्छा क्लाइंट आपका अरेस्ट हो गया उसके बाद बेल कर रहे हैं आप तो नॉर्मल बेल बोलते हैं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा। एंटीसिपेटरी बेल को भी आपको 3 हफ्ते लगेंगे कम से कम। हाँ हाँ, कहीं को बोले तो ऑपोजिट पार्टी को मौका देना ना। ऑपोजिट पार्टी को मौका देते जी हैं, अगर जीपी साहब पीपी साहब उठ के बोले मेरे कने फाइल नहीं आई, मैं फाइल ही नहीं पढ़ा, या पीपी जीपी साहब नॉट वेल है, या उन्होंने गाँव गए हुए हैं, या उन ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, उन्होंने भी इंसान है, उनकी जी तबीयत खराब होती, तो इंचार्ज पीपी जीपी रहता है, एजीपी रहता है, एपीपी रहते हैं, तो वो सब एस्पेक्ट्स रहते हैं। फिर फाइल शुक्रिया शुक्रिया। मिलना, उन्हें पढ़ना, पढ़ने के बाद उन्हें आर्ग्यू करना, उन्हें आर्ग्यू करे तक आपको वन साइड का सुन के नहीं देते, उनकी भी सुनना आपकी भी सुनना, तो फैसला होना। जी जी जी। आमिर खान भाई। So like, sir, if you have a murder case, then how हाँ, much time it will take to get a bail? वो Even he is accused. मेन अक्यूज A1, अच्छा। Yeah. तो एक सिंपल आंसर नहीं है उसका, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि वो चार्जशीट के अंदर उन्होंने क्या डिटेल्स लिखे, एफआईआर के अंदर क्या डिटेल्स है, उन्होंने बैड इंटेंशन मेंस रिया रख लेके, उन्होंने प्रिपरेशन प्लानिंग वेपन ले लेके आके मर्डर करे, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, इम्कानात कम रहते हैं। अगर इन द फिट ऑफ रेज कुछ सडनली उनको गुस्सा आ गया और सामने जो रखा हुआ था वो लेके उन्होंने मार दिया और मर्डर हो गया, बाद में उन्होंने नादिम हो गए कि अरे मैं नहीं मारना चाहिए था, और उन्होंने अपनी लाइफ को सुधार लेने के उसमें है, तो थोड़ा चांसेस का जो है ज्यादा रहते हैं, बेल के थोड़ा जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। या अगर ऐसा इम्कान है कि उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया है तो इम्कान ज्यादा रहते हैं। किस तरीके से मर्डर करे, कहाँ पे करे, कौन किसका मर्डर करे, जेंडर क्या है उनका, एज क्या है, क्या पर्पस क्या इंटेंशन से मर्डर करे, कौन से वेपन से मर्डर करे, कौन से लोकेशन पे करे, फिर वो चार्जशीट में एफआईआर में और रिमांड रिपोर्ट में केस डायरी में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है क्या, LW1 LW2 पूरे लिस्टेड विटनेसेस के स्टेटमेंट्स में फर्क है क्या, या पूरे सेम चीज बोल रहे हैं, सब लोग देखे क्या, सीसीटीवी कैमरे में आया क्या, तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं। किताबों में तो लिखा हुआ है कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन, कि जो भी बेल अप्लाई करता है उसको दे देना चाहिए बोल के किताबों में लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली उतना इम्प्लीमेंट वो नहीं हो रहा, क्योंकि जजेस ये चाह रहे हैं कि भाई मुजरिम अगर है तो हम कई को रिस्क उठाना उसको बाहर छोड़ के, जैसा एक हुआ था ना इधर राजेंद्र नगर साइड में, एक शमशाबाद में मर्डर हुआ था, तो वो चल रहा था, एक एक्यूजेशन था कि उन्होंने जो है कुछ गलत रिलेशन करे, कैब ड्राइवर साहब थे, तो फॉर देयर प्राइवेसी अपन नाम वगैरह नहीं बोलेंगे, रिलीजन भी नहीं बोलेंगे, तो कैब ड्राइवर साहब को चाकू से कोई चीज से शमशाबाद में मर्डर करे, तो उन्होंने इसीलिए मर्डर करे कि उनका कुछ उनके खानदान के किसी के साथ कुछ गलत रिलेशन था, तो फिर उसके बाद उनका जो है केस चला, केस जब चला तो फिर काफी अरसा हो रहा था, तो ये जो मर्डर जिसका हुआ उनके मामू या उनके चाचा या कोई दो दोस्त मिलके क्या करे, वो राजेंद्र नगर कोर्ट से घर को जा रहे हैं ऑटो में फॉलो करे, पिलर नंबर आई थिंक 130 और 140 के बीच में, आराम घर से आप मेहदीपट्टनम जा रहे तो लेफ्ट साइड में एक झाड़ है, तो झाड़ के पास रो के भगाए, उसके बाद गिर गए, कुल्हाड़ी दरांती जो रहती ना वो लेके मल्टीपल टाइम्स गर्दन पे मार के खत्म करे, पूरा फोटोज Yeah, वीडियोज। it is near Ring Road, right, sir? This हाँ one, हाँ like, हाँ, yeah. या तो Even policeman is standing behind him, but he's not doing anything. He's just period of silence in that. ट्रैफिक पुलिस वाले थे, और करेक्ट करेक्ट हाँ। Yes. मतलब तो ये भी एक थोड़ा लोग ये सोचते हैं कि
जो पुलिस वाले हैं वो क्राइम जब हैपनिंग क्राइम हो रहा तो अपने हाथ से रोकते हैं। हर कंट्री के रूल्स अलग है। बास कंट्रियों में ऐसा है कि क्राइम अगर हो रहा उसके सामने, ऑफिसर के सामने, तो ही इज नॉट सपोज टू इंटरवीन इन द हैपनिंग क्राइम। क्राइम हो जाने के बाद ही सपोज टू नोट इट डाउन एंड देन टेक रेमेडियल एक्शंस, उसको सजा देने के लिए एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। जैसा जेड सिक्योरिटी हो गया, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, एमएलए एमपी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस अलग रहते हैं कि अगर सामने से कोई बंदूक चला रहा एमएलए एमपी साहब के पास, तो उन ऑपोजिट में रिटेलिएटरी एक्शन ले सकते हैं उन्होंने। अगर उनको डाउट हम्म, भी रहा कि सामने से गोली चलेंगी तो दे कैन टेक रिटेलिएटरी एक्शन टू प्रोटेक्ट द वीवीआईपी। बट जो वीवीआईपी के लिए जो उन्होंने एक्शन ले सकते, उतना उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं दिया गया आम सिटीजन के बारे में। तो वो है, अब जैसा ट्रम्प को भी बेचारा को कान पे गोली लगी थी ना, तो रिसेंटली या सुसाइड करे या अपोजिट साइड कुछ शूटिंग करे या ऐसा कुछ हुआ, उनको अरेस्ट करे फॉरेन। तो वैसे तो अमेरिका में मंथली कई मर्डर्स हो रहे। इतने मर्डर्स हो रहे सो टाइम पे सेम डे अरेस्ट हो रहे, केस चल रहा, या पलट के शूट कर रहे पुलिस वाले, तो वो सब इश्यूज रहते। तो कहाँ थे अपन, कौन नई बात करे, 1 मिनट में क्लोज हो जाने वाले फ्री का जूम। इरफान भाई, मोहम्मद, सिस्टर शाहीन, आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ भी नहीं बोले। अच्छा, सिस्टर शाहीन का साउंड नहीं आ रहा। सिस्टर कौसर हाँ आप, हाँ, शाह शाह, सिस्टर शाहीन आपकी आवाज आई, एक वर्ड सुने हाँ अब। सर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ सर, ये मर्डर के केस का तो मेरे को नहीं मालूम है सर। मतलब जो राजेंद्र नगर उसमें जो मर्डर मर्डर हुआ था वो मेरे को नहीं मालूम है सर, उतना आइडिया नहीं है उसके केस के बारे में। ओके ओके। हम्म, लेकिन बेल फर्निश का मैं बोल सकती हूँ सर। जो अपन मतलब एनडीपीएस के केस का या अपन मर्डर के केस का अगर बेल करना है तो अपन कोर्ट में कैसा फर्निश करना है बेल। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को हाई अगर सेशन कोर्ट से बेल नहीं आ रहा तो अपन हाई कोर्ट में बेल अपील डालते हैं। तो करेक्ट। बेल अगर हाई कोर्ट में अपने को पास हो गया तो अपन हाई कोर्ट से बेल लेके वो ऑर्डर लेके फिर अपन यहाँ पर सेशन कोर्ट में आना पड़ता। हम्म। जब ट्रायल चल रहा वहां पर आना पड़ता, वहां से अपने को बेल फर्निश करना पड़ता। तो बराबर। ये प्रोसेस मुझे मालूम है सर, तो बेल का प्रोसेस बोल सकती हूँ सर मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। ठीक है, द टाइम इज अबाउट टू एंड। बोथ द सिस्टर्स ये यूट्यूब पे जाएंगे, इट्स ओके विथ यू नो? थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर सर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। Yes, sir. थैंक्स फॉर Thank योर you. टाइम सर।